Yeah, so welcome to the lab of C programming. My name is Dr. Sahil Sharma. I will be taking your lab for your subject of C programming. Is this group uh, 1 COE6? Oh, COE9, I guess, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, so it is COE9. Okay, so this is your first lab of C programming, Yes, sir. right? So, okay, I am from CSCD department. I am faculty of computer science engineering, and my expertise is in machine learning and deep learning. I have done a PhD in face recognition and reconstruction. So that's my introduction. My email ID is sahil.sharma at thapa.edu. In case you need to email me, I will let you know that what you can email and what you cannot. So I will let you know in case you have some doubts in programming, you can send me the code over an email and I will see to it. So yeah. So this is your first lab of C programming, and who is taking your classes, lectures? Hanji, who is your class teacher of COE9? बताओ. We don't know. You don't know the name? Sumit Sir, Miglani. Sumit Miglani. Okay, Sir, Dr. Sumit Miglani, sir. Okay, good. So at least someone knows the name. Okay, so I want to ask you before I start the teaching, I want to ask you what have you been taught? आपको क्या क्या पता है क्लास में क्या क्या सिखा दिया? Let me know the keywords or the things that you have been taught, so I will teach you accordingly. Quickly. So, variable declaration and naming rules. Bus. Variable declaration, and naming rules. That's it. Yes, sir. Nothing about Hello World program. No, sir. Naming. Okay. Naming rules. So this has been taught to you. Okay, so we will cover this thing also in our code. So I will be first letting you know that what is the basic structure of C program, so that you understand that why or how do we start coding. I want to ask you people, you are from COE branch, so why do you want to learn the coding? So if we say that uh, compulsion to chalo hai hi hai, keeping that compulsion aside that you have to pass this subject, that then why would you want to learn the programming? अगर आपको इसमें अच्छा करना है तो इसका क्या क्या फायदा होगा? Can anyone tell me? सर इससे आगे हम एआई डेवलपमेंट में जा सकते हैं बिकॉज हमारी रिसर्च स्पीड बहुत स्लो है ह्यूमन ब्रेन्स की. किसकी डेवलपमेंट में हम जा सकते हैं? एआई डेवलपमेंट. यस सर. ओके, एआई डेवलपमेंट में जा सकते हैं. व्हाट सर एल्स? इसकी मदद से हम बड़े सारे एस्पेक्ट्स अपने लिए और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सीख कर. कैसे, मतलब कोई एग्जांपल दोगे? सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम इसी में अपनी बेसिक्स एम्पावर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारी जो लाइफ में हैं वो चाहे फॉर वो सब. एग्जांपल मुझे एक छोटा सा एग्जांपल याद आया है. आई हैड ए फ्रेंड, ही वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. उसने क्या किया, ही डिड हिज प्रोग्राम, ही मेड हिज पाइथन प्रोग्राम एंड ही कनेक्टेड हिज प्रोग्राम टू द कॉफी मशीन ऑफ हिज ऑफिस. तो वहाँ पे ऑफिस में मतलब जैसे वो अपने टेबल से उठ के जाएगा टू द कॉफी मशीन, वहां पे अब अगर कमांड देंगे तो वो कप भरने में टाइम लगाता है, राइट? जो हमारा कॉफी मेकर है बैकएंड पे, हो सकता है कि उसके पास रिसोर्सेज वो इकट्ठे करने में 2 मिनट लगा देगा. तो व्हाट ही डिड वाज ही सेड दैट आई मेड द प्रोग्राम कि वो अपने डेस्कटॉप पे पीसी पे बैठा बैठा कमांड देके जाता था कि मेरी कॉफी का मग फिल हो जाए पहले ही. ठीक है, तो वो वहां पे पहुंचता था और वो अपना कप उठा के ले आता था विदाउट एनी काइंड ऑफ वेटिंग. So that is one of the thing. Python also can do that, but now we have to learn C programming, or C programming is kind of old. Old मतलब 1970s 80s की language है, but this is the mother of all languages. So this came
as one of the first programming language that could help us to get the work done in a manner कि हम as a human being कुछ lines of code लिखेंगे, ठीक है, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे और वो हमें समझ आ रही है और उसको बैकएंड पे वो मशीन को भी समझा पा रहा है जो हमारा कंपाइलर है, तो मशीन से हम काम करवा के अपना वापस ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच मेड आवर जॉब इजी। बिफोर सी प्रोग्रामिंग देयर वर लैंग्वेजेस like I mean there was Fortran, there was COBOL, एंड ऑल्सो देयर वाज दिस बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे ये सी प्रोग्रामिंग है तो ऐसे ही बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट वाज देयर। सो बट दीज लैंग्वेजेस वर मोर डिपेंडेंट ओवर द मशीन एंड ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग कि आप कोडिंग इस हिसाब से करो कि मशीन को आसानी से समझ आए। बट सी प्रोग्रामिंग वाज द फर्स्ट लैंग्वेज जो ह्यूमंस के लिए बनाई गई एंड इट वाज सो पावरफुल दैट वो मशीन को भी पीछे संभाल रही है यहाँ से, ठीक है, मशीन को भी संभाल रही है, इसको कमांड दे रही है, वापस लेके आ रही है, एंड ह्यूमन बींग्स को भी रिजल्ट ठीक से मिल रहा है इन ए अंडरस्टैंडेबल वे। और कहाँ पे हम प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं? आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। मोस्ट ऑफ यू मे हैव और विल बी गेटिंग योर पासपोर्ट्स आल्सो। सो अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे in India, passport portal of Indian government is being handled by TCS. I think it is handled by TCS or Tata Consultancy Service, maybe other branch of Tata, but Tata is actually helping government of India to get the work done for this passport thing. And also government of India's ITR, IT returns. So income tax returns are also these days the website is very updated, and again coding is helping to get the work done for a human being। हमारे लिए क्या है कि अगर हम पहले फॉर्म भरते थे, फिजिकल फॉर्म भरते थे, उसकी बजाय हम अब ऑटोमेशन में सारा कुछ हमारा काम हो जाता है। वी कैन फिल द फॉर्म ऑनलाइन एंड गेट द वर्क डन। सेम फॉर पासपोर्ट, यू कैन फिल योर एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड गेट द वर्क डन इजीली, ठीक है। even for your marriage certificate, future में when you will get married, if you want to get the marriage certificate in India, again you can fill some marriage certificate online portal and get the work done. Same for driving license, everything is being converted into online platforms, digitization is being done, and backend पे हर किसी के coding ही use हो रही है, okay। And now I want to bring the structure of C program in front of you. I want to build only small thing right now. What I will do is I will write only 4-5 lines. Then I will explain what does this mean. Hash include stdio.h. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर आप हमारा एनवायरनमेंट सेटअप करवाओगे सी के लिए? I will let you know कि क्या करना है। अभी अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी तो Okay. अभी सिर्फ मैं पहले कोड लिख लूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ कि कैसे आपको एनवायरनमेंट हैंडल करना अपना फॉर सी प्रोग्रामिंग। printf hello world. You can write your name also in place of hello world. Any string can be there. Return 0. So now I will explain you this code, and in fact I will explain you this by running it. So I will take you to the online portal which will directly help you to get the work done. So I'm switching my screen, give me 1 second. Yes, I hope you can see my browser. So if I write here online C compiler, ऑनलाइन सी कंपाइलर लिख के मैं सर्च कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग दिस लिंक। फर्स्ट लिंक आ रहा है onlinegdb.com and I'm going to open this. So when I open this, there are few lines in the beginning. I will remove them. These are multiple line comments. I will come to this later on. But right now, whatever I have written on the sheet on my notebook, that same code is written in front of you right now. And this is just a 6-line code. If you see, it is only 6-line code. And if I run this, I will explain you everything that what is being done. But now if I run this code, if I click on this run button, it is printing hello world in front of me. ठीक है, अब देखो you are supposed to understand this code now, and I am supposed to make you understand this. So let's begin.
I am going to write on the screen itself. Where is the annotate option? Arey yaar, 1 second. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So I am unable to annotate. Give me 1 second. Okay, so I am unable to annotate on screen right now, but I will explain you the code. इसमें हो क्या रहा है? Coming back to the OneNote, here I can write easily. So यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले हम कर रहे हैं hash include. So I will make it different color. Hash include हम कर रहे हैं. Hash include का मतलब है that I want to include something. ठीक है? Before starting my program. So program मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है. C programming में there is a rule that every compiler will start the coding, will start the processing. Whatever I write, it will be processed by the compiler to get the work done. So compiler will find the main function. सबसे पहले it will go and find the main function. But before that, we have said that within main function, I might want to use some other things, and for that I want to include something beforehand. ठीक है, तो मैं कुछ एडवांस में कुछ इंक्लूड करवाने के लिए I can write the statement hash include stdio.h. Now this stdio.h is called standard input output header file. इसकी फुल फॉर्म है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ठीक है, डॉट एच का मतलब हेडर फाइल है. सो दिस इज समथिंग दैट इज प्री इंस्टॉल्ड व्हेन आई इंस्टॉल माय सी प्रोग्रामिंग सेटअप on my screen, on my Windows or my operating system. So there is one very famous software which I would like you to install on your laptops. It is called dev C++. Okay, so this is the most easiest way that you can install on your I mean you can install this environment of working with C programming or C++, because you will be taught C++ in the next semester. So that's why, according to me, dev C++ should be very helpful to you. If you start working in this software in this semester, it will be helpful for you in the next semester also. It is available on sourceforge.net website, sourceforge.net. So if you just Google search dev C++ आप लिखोगे and just write download. So अगर आप ये लिखोगे, there will be first link that will be there about the sourceforge.net. You can get this software freely from there. It is about 48 MB. तो आप ये Windows में install कर सकते हो. And if you don't have Windows, if you are working on Mac, I would recommend you to work like me, the way I am working on my laptop on this platform of onlinegdb.com. So you have two options. You can work on this online platform, and also you can work on your laptops on dev C++. So now when I install dev C++, it will be installed in my C drive, uh, C drive. Okay. Within that, there is this folder called program files. Something like x86 will be written, and within this I can easily find devcpp folder. So there will be one folder called devcpp. So within this folder, when you go, you can search about stdio.h. आप एक search कर लेना within this folder, and you will see that this stdio.h is a file available within the setup on the backend. Kind of, it is a library, and if you open that file stdio.h, अगर आप उसको खोलोगे, maybe you can open this file in software called Notepad++. So it is it is a different software. Notepad से अलग है ये, Notepad++. So you can open this stdio.h in Notepad++, and you will see lots of things are pre-written, and within that you will also find some functions. One of the function will be printf, one of the function will be scanf,
other function might be get char, put char, gets, puts. So there are multiple functions that are predefined inside this stdio.h, and because I want to use this printf particularly in my code, and I don't want to write the function of printf apne end pe, that's why I have written this first statement that I want to include something that is predefined in my software. उसमें से मैंने stdio.h को बुला लिया. stdio.h is now helping me to work with printf. Can you tell me one similarity between main and printf? इन दो स्टेटमेंट्स में मुझे एक सिमिलरिटी बता दो. एनीवन? सर दोनों में पैरेंथेसिस है. दोनों में पैरेंथेसिस हैं. वेरी गुड. सो नाउ इफ आई राइट printf, it is written with this round bracket, and this main function is also written with this round bracket. These parentheses, especially these round parentheses, round brackets, is a symbol कि ये दोनों मेरे क्या हैं? फंक्शन हैं. So C programming में there is a chapter for you. If you go and read a book, you will find that around 4th or 5th chapter, maybe 6th chapter is called functions. एक functions नाम का chapter आएगा आपको. तो functions क्या करते हैं? Functions make my job easy if I want to do a work again and again rather than writing everything again. अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को stdio.h के अंदर printf ना मिला होता तो मैंने जितनी बार भी प्रिंट करवाना था, लेट्स से मैंने पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखता मैं, फिर मैंने लिखना था प्रिंटफ डॉक्टर साहिल शर्मा, फिर मैं लिखता प्रिंटफ 1 COE 9. तो मैं जितनी बार भी जो ये प्रिंटफ लिख रहा हूँ बार बार, इसकी बजाय मुझे बार बार वो लेट्स से देवर 5 स्टेटमेंट्स इनसाइड प्रिंटफ, तो मुझे वो पांचों लाइन बार बार लिखनी पड़ती. अब वो डुप्लीकेसी ना हो, मुझे बार बार उतना एफर्ट ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं? प्रीडिफाइंड चीज को मंगवा लेते हैं कि मुझे यार दोबारा ना वो 5 चीजें लिखनी पड़े, मैं बनी बनाई चीज को दोबारा यूज करना चाहता हूँ. सो फॉर दिस थिंग वी यूज फंक्शंस. ठीक है जी. तो printf इज ए फंक्शन, मेन इज ए फंक्शन. नाउ कमिंग टू दिस एंगल ब्रैकेट. अब यहाँ पे एंगल ब्रैकेट है. ठीक है. यहाँ पे तीन तरह की ब्रैकेट यूज हो रखी है पूरे प्रोग्राम में. एक तो यूज हो रखी है stdio.h के साइड पे एंगल्ड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं जी हम एंगल्ड ब्रैकेट. ठीक है. ये चीज हमेशा यूज होती है जब भी हमने कुछ लाइब्रेरी से मंगवाना है, कोई पैकेज है प्रीडिफाइंड, जैसे stdio.h इज वन ऑफ द पैकेज. सिमिलरली math.h इज अनदर पैकेज. तो math.h इज आल्सो कॉल्ड यूजिंग दिस एंगल ब्रैकेट्स. ठीक है. एंगल ब्रैकेट्स का ये फंक्शन है कि हमें प्रीडिफाइंड चीजों को मंगवाना है. एक होता है जी ये राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि हमें फंक्शन यूज करना है. फंक्शन होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस आर देयर. इट माइट बी अ मेन फंक्शन, इट माइट बी अ printf फंक्शन. ऐसे ही एक scanf फंक्शन होता है. scanf पे भी आएंगे आज. printf का मतलब है कि मुझे आउटपुट चाहिए. scanf का मतलब है कि मुझे कुछ इनपुट देना है कोड को. तो यूजर इनपुट जब भी हमें करवाना होगा, आप लोगों ने बताया था मेरे को दैट यू पीपल हैव बीन टॉट व्हाट ए वेरिएबल इज एंड how to declare it and also the naming rules. So जब भी आपको कुछ वेरिएबल को सपोज डिक्लेयर करना है, how do we declare a variable? Let's say I want to declare a integer. तो मैं क्या लिखूंगा कोड में, बताओगे? डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, पहले डेटा टाइप लिखूंगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर पहले डेटा सुनो, टाइप, पहले डेटा टाइप लिखूंगा. ठीक है, हो गया. अब वेरिएबल नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, ओके, देन वेरिएबल, देन वेरिएबल और वैल्यू. वैल्यू. यस, इधर वैल्यू आएगी. अब देखो कुछ ऐसा लिखेंगे, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. इसका मतलब है डेटा टाइप है मेरा इंट, या फिर वो फ्लोट भी हो सकता था, या वो कैर भी हो सकता था. मतलब इंटीजर यूज कर रहा हूँ, या मैं फ्लोट यूज कर रहा हूँ, या कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ. तीनों का एग्जांपल दे देता हूँ. इंट का मतलब होता है कि मुझे काउंटिंग यूज करनी है, जैसे -3, -2, 1, 2, 3, 0, कोई भी नंबर है जिसमें पॉइंट्स नहीं है वो इंटीजर है. अगर मेरे नंबर में पॉइंट्स आ जाएं, लेट्स से पाई का वैल्यू है 3.142, दिस इज ए फ्लोट नंबर. जिसमें पॉइंट्स आ गया, जिसमें एक भी पॉइंट आ गया तो वो मेरा फ्लोटिंग नंबर है. सिमिलरली कैर क्या होता है? लेट्स से मुझे कैपिटल ए लिखना है या स्मॉल ए लिखना है, तो ये मेरे करेक्टर्स हैं. ठीक है जी. तो डेटा टाइप
मेरा कुछ भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है। उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम का रूल क्या होता है? एनीवन? नाउ इफ आई Can वांट only, टू, यस, sir, can only contain letters and numbers and underscore. तो मैं तुम्हारे अंडरस्कोर और उसको सब कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे It starts with special case underscore or न्यूमेरिकल से letters. न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं हो must सकता। start with the digit. यस, द ओनली रूल इज इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द नंबर। आप जो मर्जी खिचड़ी पकाते रहो, आप कोई भी नाम रख लो, A3 4, उसके बाद B भी रख लो, ऐसे गंदा सा नाम रख लो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, दिस इज एक्सेप्टेबल। पर अगर आप बोलो कि मैं लिखूंगा 3_A_4, ये _B, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए नंबर। तो नंबर से शुरू नहीं करना, शुरू करेक्टर से ही करना है, या फिर ऐसे अंडरस्कोर से भी कर सकते हो कोई स्पेशल करेक्टर से। बट देन बस मतलब यही रूल है, मेन तो यही होते हैं जितना मेरे को याद है। एंड नाउ इफ आई क्लियर दिस थिंग अप, सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको दैट इसमें करना क्या है। लेट्स से नाउ आई वांट टू राइट दिस थिंग, डाटा टाइप है मेरा इंट, वेरिएबल है a इक्वल टू 10। नाउ टेल मी, इज दिस डिक्लेरेशन और डेफिनेशन? दो चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ कि ये डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है? एनीवन? Declaration. डेफिनेशन। डेफिनेशन मेरे को 3 सुनाई दी है, डिक्लेरेशन मेरे को 1 सुनाई दी है। एनीवन एल्स? एक्चुअली इट इज डेफिनेशन, इट इज नॉट डिक्लेरेशन। फर्क बताता हूँ क्या है। इफ आई राइट ओनली इंट a, ये मेरा डिक्लेरेशन है, ठीक है जी, ये मेरा डिक्लेरेशन है। अगर मैंने बोला a इक्वल टू 10, तो ये मेरा डेफिनेशन है। मतलब क्या कि अगर मैंने सिर्फ अपना इंटेंशन बताया कि मैं ऐसा कुछ यूज करना चाहता हूं अपने प्रोग्राम में, पर उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो डिक्लेयर करा है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी मैं आगे जाके इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट देन इफ आई एम गिविंग सम वैल्यू, इफ आई एम असाइनिंग समथिंग टू दैट वेरिएबल, दैट थिंग मीन्स दैट आई एम डिफाइनिंग इट। डेफिनेशन उसको बोलते हैं। इसका टेक्निकल मतलब मैं समझा देता हूँ, इसको याद रखना आसान होगा। एक्चुअली whenever we declare a variable, उससे क्या होता है रैम में, अब देखो कोई भी वेरिएबल है, कोई भी प्रोग्राम है, बैकएंड पे तो रैम यूज कर रहा है ना, तो रैम में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। जब तक मैंने ये अपने कोड में लिखा इंट a, इसको कोई यहाँ पे जगह नहीं मिली, कुछ एलोकेट नहीं हुआ रैम में, कोई जगह नहीं मिली प्रोग्राम को, इस वेरिएबल को स्पेशली। बट नाउ इफ आई राइट a इक्वल टू 10, तो इसके पास a के पास एक गेस्ट आया है, उस गेस्ट को इसने घर देना है, तो ये इसको यहाँ पे रूम एलोकेट कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेट करना। अब इसको a को जगह मिल गई है रैम में, जिसमें उसने 10 को रखना है, ठीक है। एंड बिकॉज इस टाइम पे इसको जगह मिली है, इसलिए हम कहते हैं इसको हमने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी इसको हमने a को। जब इसको मेमोरी एलोकेट होगी उसी टाइम हम उसको बोलेंगे कि ये डेफिनेशन है। अब मैंने बोला कि अगर मैं इंट a कर रहा हूँ वो डिक्लेरेशन है, अगर मैं a इक्वल टू 10 कर रहा हूँ वो डेफिनेशन है। मैंने ऊपर लिखा था इंट a इक्वल टू 10। अब इसमें क्या हो रहा है, डिक्लेयर भी हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ a को, इसलिए मुझे फर्स्ट टाइम ये इंट बताना पड़ेगा। साथ ही मैं उसको वैल्यू भी दे रहा हूँ, तो साथ ही वैल्यू देने का मतलब है मैं उसको मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे लेट्स से ये a नहीं b था, तो ये b को यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ एक और बात, अब ये तो क्लियर हो गया दैट व्हेनेवर द मेमोरी इज एलोकेटेड उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से आई राइट इंट a इक्वल टू 10 एंड अगेन आई राइट इंट a इक्वल टू 20, क्या ये सही है सेम प्रोग्राम में? No, sir. नो? No, sir. Yes. वाई? यस वाई? नो वाई? सर इससे a की अगर- वैल्यू 20 ओवरराइट हो जाएगी तो ये यस वाला है ना, जिसने यस बोला है वो कह रहा है कि ओवरराइट हो जाएगा। नहीं सर, यस तो हाँ मैं कहा। हाँ सर, यस, हाँ यस। कंप्यूटर दूसरी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। यस सर। आप कह रहे हो कि कंप्यूटर दूसरी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है ओवरराइट कर देगा। आप तो यही कह रहे हो ना कि a है, पहले 10 आया, Yes, sir. फिर 20 आया तो ओवरराइट हो गया, यस सर, यस सर। है ना? सारे यही कह रहे हो?
यस सर। सर 20 को वो कहीं नई जगह सेव करेगा और A को 20 की ओर पॉइंट कर देगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे इस प्रोग्राम में अगर मैं int a 2 बार करूंगा तो वो बैकएंड पे क्या कर रहा है, बैकएंड पे इन दोनों को वो जगह दे रहा है रैम में, ठीक है, रैम में जगह दे रहा है, जहां पे एक बार वो 10 रख रहा है, एक दूसरी बार वो उसको 20 रख रहा है। आप यही कह रहे हो? यस सही कंपाइलेशन एरर देगा, ऐसे ओवरराइड भी नहीं करेगा, दो भी नहीं बनाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर यूनिक होता है हमेशा। यस एग्जैक्टली। आप सेम वेरिएबल को, अब यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये रूल है, वेरिएबल के रूल हैं ये, तो आप सेम वेरिएबल को विद इन द सेम ब्रैकेट दोबारा नहीं वो कर सकते, मतलब उसका डाटा टाइप दोबारा नहीं दे सकते। अगर एक बार मैंने उसको इंट बोल दिया तो वो इंट ही चलता रहेगा एंड तक, तो दोबारा इंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर मतलब आप ये बोलो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये करूं int a equal to 10, float a equal to 20.5, क्या ये सही है? अब यहाँ पे मैंने एक इंट लिया, एक फ्लोट लिया है, अब बताओ। यस सर सही है। चलो अब प्रूव करते हैं, No. सही सही है या गलत है, अभी प्रूव हो जाएगा। नाउ इफ आई राइट विद इन दिस मेन int a equal to 10 and float a equal to 20.5, ठीक है, प्रिंट करते हैं इसको, printf। अब देखो printf के अंदर ना एक रूल होता है दैट, सबसे पहली बात तो जो भी मैं इस डबल कोट्स में लिखूंगा सिर्फ वही प्रिंट होगा, ठीक है, जो भी मैं इन डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा सिर्फ वही प्रिंट होगा, चाहे मैं अब यहाँ पे हेलो लिखूं चाहे हैप्पी बर्थडे लिखूं वो तो प्रिंट हो ही जाएगा। बट देन आई वांट टू प्रिंट इंट एंड फ्लोट, दो वेरिएबल हैं, दोनों ए हैं। अब यहाँ पे इंट को प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं हम %d, ठीक है, कॉमा ए। अगर मैं सिर्फ इतना लिख के चलाऊं तो क्या वैल्यू प्रिंट होएगी? इतना बता देता हूँ कि जो मेरा %d होता है वो इंटीजर के लिए होता है। तो अब बताओ इफ आई राइट दिस प्रोग्राम %d कॉमा a विद इन दिस, रूल ये कहता है कि आपने जब यहाँ पे इसके अंदर %d लिख दिया तो आपका ये %d विल बी रिप्लेस्ड बाय द वेरिएबल विच इज आउटसाइड, ठीक है। तो मतलब जो ये a है वो इसकी जगह ले लेगा %d की, ठीक है जी। तो अब बताओ मेरे को इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा। देखते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा। एरर आ गया यार ये तो। अब बताओ, देखो एरर क्या है, ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप फॉर ए। भाई एक जगह आप कह रहे हो कि मैंने ए को इंटीजर रखना है, फिर आप कह रहे हो कि ए को फ्लोट बना दो। वो ये कह रहा है दैट दिस कैन नॉट हैपन, प्रीवियस डेफिनेशन वाज देयर, ठीक है, प्रीवियस डेफिनेशन is at line number 4, you cannot again define a having float data type in the 5th line। ये 3-4 लाइन का मतलब ये है, समझ आया? तो आप एक ही वेरिएबल का नाम बार बार नहीं यूज कर सकते। इफ यू वांट टू यूज अनदर वेरिएबल जस्ट यूज डिफरेंट नेम, दिस इज ए रूल। अब यहाँ पे नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट float value also along with the integer, what I can do is I can put a comma in between, comma नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, but I have to write %f because now I want to replace this %f with the value b which is a float number। अब आउटपुट क्या आएगी मेरे को एग्जैक्ट आउटपुट बताओगे आप? 10 and 20.5। 10 and 20.5, क्या ये एग्जैक्ट यही वाली आउटपुट आएगी? एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे यस कि कुछ और आएगा? एनीवन? सर 10,20.5 आएगी। कॉमा आएगा, यस 10,20.5 यस आएगी। यस, कॉमा आएगा फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है हमारे कोड्स के अंदर। कोड्स के अंदर आप कुछ भी डालोगे प्रिंटफ सबको उठा लेगा। आप कॉमा 3 बार डाल दोगे तो वो 3 बार कॉमा मतलब बीच में अगर बीच में डॉट आ गया 2 बार फिर एक डॉलर आ गया तो वो सेम उतना ही गंद डालेगा प्रिंट के टाइम पे।
देखो उसने एज इट इज यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉमा डॉट डॉट डॉलर साइन सब डाल दिया उसने, क्योंकि वो प्रिंटिंग के टाइम पे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आपने बीच में क्या लिखा है। उसने सिर्फ %d के लिए a को उठाना है, सीक्वेंस में उठाएगा, %f की जगह पे b को डाल देगा, ठीक है। तो वो इस चीज को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे ये वाली चीज आएगी 10 स्पेस 20.5 बिकॉज आई हैव रिमूव्ड कॉमा, ठीक है जी। और एक और बात, कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाई आर दीज 6 डिजिट्स कमिंग आफ्टर डॉट? Float precision up to 6. फ्लोट की Yes. प्रिसीजन इतनी ज्यादा। हाँ जी, फ्लोट का जो बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन है इट इज अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर इसको कम करना है व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट 0.2 हियर, तो मैं 0.2f लिख दूंगा परसेंट के बाद। तो इसका मतलब है कि मुझे डॉट के बाद सिर्फ 2 करेक्टर चाहिए, तो 20.50 आएगा इस बार। देखते हैं आउटपुट। स्लो क्यों हो रखा है? 1 second. I'm going to refresh this page. Run this again. फिर अगर Yes. सेम डाटा टाइप के साथ 2-3 बार डिक्लेयर करते हैं तो वो ओवरराइड करेगा कि एरर? सेम डेटा टाइप के साथ क्या करते हैं? अब देखो ये डाटा टाइप है इंट या फ्लोट, आप कह रहे हो कि 3 बार इंट रखना है, यस सर सर। वो देगा। और जो ये ए का नाम है तो ए सेम रखोगे, इंटे ऐसे रखना चाहते हो कि इंटे जी। इंट बी इंट सी? इंट ए। इंटे हर बार तो वो गलत कर देगा ना, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया दैट यू कैन नॉट रीडिफाइन इट। जब आपने एक बार डिफाइन कर दिया, आप सेम चीज को दोबारा क्यों डिफाइन कर रहे हो? वो बोलेगा कि कोई और वेरिएबल ले लो यार। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। इफ यू वांट टू प्रिंट इट, लेट्स से हम सिर्फ एक ही करते हैं, हम देखते हैं कि वो 10 आउटपुट देता है, 20 आउटपुट देता है कि एरर देता है, ठीक है। इसको रन करते हैं, एरर आ गया, यू कैन नॉट रीडिफाइन ए, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके सर। ओके हाँ जी, और बताओ। क्लियर है जी, चलें आगे। नाउ आई वांट यू टू मेक सम ऑफ 2 नंबर्स प्रोग्राम। तो मैं ही बनवा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। यू कैन मेक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, वो सब आप कर लेना। सम का मैं करवाता हूँ। लेट्स से इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या करोगे आप? प्रिंट एफ सम इज %d comma c. So this c will go and replace this %d value and your output will be sum is colon and then 30, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मेरे पास sum आ गया 30 and what is being done is कि आपने पहले int a लिया 10, int b लिया 20, int c लिया a plus b and then sum has been done, sum is %d। अब ये %d रिप्लेस हो जाएगा इस c के साथ, ठीक है। और या फिर आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ %d एंड %d इज %d a, b, c। अगर मैं ऐसे प्रिंट करवाऊंगा तो यू कैन सी हियर सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। अब इसमें देखो क्या हुआ है, मैंने 3 बार %d डाला और पीछे 3 बार वेरिएबल डाला, तो वो सीक्वेंस में मिल जाएगा। ये वाला a फर्स्ट %d को मिल जाएगा, b मिल जाएगा सेकंड %d को, c मिल जाएगा थर्ड %d को। समझ में आ गया हुआ क्या है? इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ। एनी डाउट? नो सर। So what should I do if I want to do division? Is this fine? Is my voice okay or breaking? ओके सर। Sir, it's fine. Okay, okay, okay. It's fine. So now if I say
int a 10, int b 20, int c equal to a by b, division of a and b is परसेंट d, आउटपुट बताओ क्या आएगा क्विकली। एरर सर जीरो आएगा। एरर है एरर आएगा या जीरो आएगा? जीरो आएगा सर, जब जीरो ट्रंकेट आएगा, कर जीरो देगा। जीरो भाई 50% are saying error, 50% are saying zero. Answer is zero. Answer is zero. रीजन देखो क्या है। रीजन है कि जो मेरा इंटीजर होता है वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं भाई साहब। अब a by b करोगे वैसे तो 10/20 should be 0.5, but now in this case because we are using integer, तो 10/20 is 0.5, तो वो क्या कर रहा है, वो 0.5 को डिस्कार्ड करके 0 भेज रहा है c के पास, क्योंकि मेरे को c वाले को सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर चाहिए, वो पॉइंट से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा पॉइंट के बाद वाली सारी चीजों को। सो दैट्स व्हाई आंसर इज 0। इफ यू वांट दैट योर आउटपुट शुड बी 0.5, इन दैट केस it should be float c equal to a upon b, and now because the output is float, तो मैंने यहाँ पे थर्ड वाला जो c का वैल्यू था उसको %f कर दिया। Let's see the output now. Output is still 0. I think सर उसको भी तो फ्लोट करेंगे, ए और सुन, बी को भी फ्लोट। हाँ हाँ, सर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट मत भी करो आप, बस a अपॉन जो b करा है, क्योंकि वो इंटीजर्स को आपस में करा था तो उसने सबको ही राउंड ऑफ कर दिया, a और b को, दोनों को, तो आप सबको फ्लोट कर दो, तो अब आपका 0.5 आ जाएगा। अरे फिर अभी नहीं आएगा क्योंकि %d है उसके अंदर। दिस इज एरर। नाउ इफ आई हैव टू डू दिस, मुझे सारे %f करने पड़ेंगे। नाउ इट शुड बी फाइन। अब देखो ये कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि हर बार ये इतना बड़ा बड़ा पॉइंट के बाद हमें दे रहा है, तो हम सबको कह देते हैं कि यार हर जगह 0.2 या चलो 0.1, ठीक है, 0.1f, 0.1f एंड 0.1f, तो वो हर बार क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक जाएगा। तो डिवीजन ऑफ 10 and 20 इज 0.5। हाँ जी, सर हाँ जी, यस। सर जैसे हमने इंट ए 10, इंट बी 20 हम ये करते हैं, उसके बाद हम फ्लोट सी इज इक्वल्स टू ए, हाँ ए डिवाइडेड बाय फ्लोट बी, ऐसा कर दें। आप ये कह रहे हो? हाँ तो उससे भी हमारा 0.5 आएगा। देखो ये सिंटैक्स एरर हो गया ना, फ्लोट को सर टाइप कास्ट नहीं, करने के लिए syntax- फ्लोट को एक ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ेगा। एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डी आएगा ए और बी का। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? कैसे कह रहे हो, बताओ मेरे को दोबारा। सर हाँ मैं यही कह रहा था, अब जो बी को हम, उसका जो वेरिएबल, उसका जो डेटा टाइप है उसको हम फ्लोट दिखा दें ए डिवीजन वाले उसमें, तो 0.5। अब देखो ये मेरे को ये एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर फ्लोट, ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप ये फ्लोट कर रहे हो, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे ये अभी भी एरर देगा, स्पेस का कोई फर्क तो था नहीं वैसे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट इवन स्पेसिस ऑल्सो अगर आप फ्लोट भी कर भी दोगे तो भी एरर ही आ रहा है। बट आई थिंक अगर आप इसको कर दोगे फ्लोट a अपॉन फ्लोट b, फिर देखें ये इसको उठा नहीं रहा। टाइप कास्टिंग होती तो ऐसी सर ही ये है। शायद सिंटैक्स एरर है, फ्लोट को ब्रैकेट्स के अंदर रखना होता है, ए और बी को नहीं। हाँ जी फ्लोट सर के वो, आगे ब्रैकेट के अंदर फ्लोट लिखना अच्छा, पड़ेगा। हाँ आप जी ये सर, कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि वी हैव टू हाँ राइट जी, फ्लोट लाइक दिस हाँ जी हाँ जी, एंड सर। एक को ही करना पड़ेगा, जरूरी डिवाइड। नहीं दूसरे को भी करना, एक अच्छा, को ही एक को करना करके हो जाएगा। सर इससे आना हो चाहिए जाएगा। 0.5। हाँ ठीक है, हाँ, इससे हो रहा है। तो इफ ये योर तो टाइप कास्टिंग न्यूमरेटर, होगी। हाँ, इफ योर न्यूमरेटर इज फ्लोट देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ये भी ठीक है। डिनोमिनेटर भी हो सकता है, कोई एक होना चाहिए। अच्छा, ये भी सही ये है। कैसे सर, समझ नहीं आया। ये टाइप कास्टिंग होती है कि मतलब अगर आपका कोई जैसे इंटीजर है, तो आप इंटीजर को फ्लोट में करना चाहते हो या फ्लोट को इंटीजर में करना चाहते हो, आप ऐसे ब्रैकेट में आगे डाल के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं फ्लोट, हमारा ए फ्लोट है, ठीक है, तो फ्लोट है तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 10.5। तो अगर अब मैं इसको फ्लोट को कर दूं इंट,
int of a, ठीक है. Now I am converting my float number into integer, ठीक है. And इसको मैं 10 ही रख लेता हूँ, ऐसे ही फालतू में और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं हम. तो सपोज मैं 10.0 रखता हूँ इसको. By default my a is 10.0, my b is 20. Now I am converting my float into integer by using this command. मैं क्या कर रहा हूँ, by default अगर कुछ ना लिखता तो वो सिर्फ a लिखता, इसका मतलब ये float था. But I can convert this float into integer by writing this bracket में integer in front of a. इससे क्या हुआ, we are actually discarding the point after that. मतलब इसमें क्या होता है कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है, जैसे ओरिजिनल वाज 10.0, बट देन इफ आई राइट दिस थिंग, दिस विल गिव मी ओनली 10. 0.0 हट जाएगा. सो ये कन्वर्ट कर रहा है. ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, एज ए बिगिनर बहुत जनों को समझ नहीं आ रहा होगा. सो लेट्स डू नाउ ए स्मॉल प्रोग्राम जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कर लेंगे, एंड रिमाइंडर आल्सो. लेट्स डू वन थिंग. इंट ए, एक काम करते हैं, हम a और b इस बार यूजर से लेते हैं, ठीक है. हम इनपुट देंगे. कैन एनीवन टेल मी हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर के a और b हमने इनपुट देना है और फिर हम काम करेंगे. हर बार 1020 के साथ नहीं करना, बट कुछ अलग आए. बताओ जी. तो स्कैनफ यूज करना सर पड़ेगा. स्कैनफ यूज करना पड़ेगा. स्कैनफ, अब देखो, आई एम आस्किंग यू पीपल ओनली सो दैट आप लोगों को और ज्यादा समझ आए, क्योंकि साथ वाला बोल रहा होता है तो बंदे को कॉन्फिडेंस आया था कि ठीक है इसको आता है, मैं भी कर लूंगा. स्कैनफ क्या होता है? scanf में we are trying to give the value from the user. अब मेरा a है integer. Now my a is integer. So what I can do is I have to write the %d again. %d तो आना ही आना because I am dealing with integer. But now सिर्फ a लिख के यहाँ काम नहीं चलेगा. I have to give one more sign it with it. This ampersand a. ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ ampersand a क्या कर रहा है. तो a का वैल्यू can be given as input like this. Now b का भी पूछ लेते हैं लगे हाथ कि b भी बता दो जी, b का आप क्या करना चाहते हो. So b will be ampersand b. ये हो गया input का. So we are at this place, we are getting input of a from the user, and similarly we are getting input of b from the user in this expression of scanf %d ampersand b. So now I want to do something with this. I want to first of all do the sum. तो sum के लिए मैं क्या करूंगा, a plus b सीधा डाल दूंगा. तो a plus b जो भी मेरा solve होगी वैल्यू, that will come at this place, तो मेरा sum आ जाएगा. तो I can write sum is %d. ठीक है जी. उसके बाद मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल देता हूँ, बिकॉज आई वांट कि मैं जो भी मेरी आउटपुट आएगी उस आउटपुट के बाद वो अगली लाइन में चला जाए, क्योंकि जो मैं अगला printf लिखूंगा नहीं तो वो चिपक के आएगा. चलो एक बार पहले चिपका ही देते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे. नाउ इफ आई वांट टू राइट द सब्ट्रैक्शन, सो आई विल राइट सब्ट्रैक्शन इज %d comma a minus b. So whatever the answer a minus b will get, it will go and replace this %d inside this printf, in this current printf. And में semicolon जरूर लगाना है. That is the absolute necessary thing in C programming. Without that it will get you an error. Semicolon लगाने का मतलब है we are ending the statement. So if you want to get the multiplication, multiplication is again %d a into b. ठीक है जी, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Now if I want to do the division, I can write like this, a upon b, and it will be division is a upon b. What about the remainder, वो भी देख लेते हैं. Okay, remainder is, or maybe modulus. Modulus is again %d करके this. ठीक है, तो these are the 5 things that I want to get the output from
my program. So these are the 5 things, और ये सारा सिंगल लाइन में आउटपुट आ जाएगा. उसको ठीक करने का तरीका बाद में बताऊंगा. बट फॉर नाउ वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग, वेरी स्मॉल थिंग. ए बी हमने इनपुट लिया, ए बी हमने पहले अभी डिक्लेयर करा. सो दिस इज declaration of A and B which are the two variables. ठीक है जी. उसके बाद हमने क्या किया, scanf में हमने A का इनपुट लिया. मैंने बोला था कि जब हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं वो रैम में जाके उसको जगह मिलती है, तभी उसको हम डिफाइन करना बोलते हैं. ठीक है, दैट एग्जैक्ट थिंग इज बीइंग डन हियर. scanf का मतलब है दैट आई एम गेटिंग ए वैल्यू फ्रॉम द यूजर, और एम्परसेंड का मतलब यहाँ पे ना एड्रेस है, एड्रेस विद इन द रैम. So within the RAM, I am getting the address. So that's what is called ampersand. So ampersand A का मतलब है कि मेरे को एक एड्रेस दे दो रैम में, और मैं जो भी वैल्यू दूंगा एज ए यूजर, मैं जो भी वैल्यू आपको दे रहा हूँ वो उसको उसके ऊपर A का स्टिकर लगाओ और उसको जाके रैम में रख लो. तो that will be A variable, whatever the number I will give as the input, same for the B. And after that जो भी उसके वैल्यूज होंगे सारे आपके पास आउटपुट में आ जाएंगे. Let's do this thing that I will give. सबसे पहले scanf का वो मांग रहा है मेरे से. अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, वो रुका हुआ है यहाँ पे. इट इज वेटिंग फॉर माई इनपुट. ठीक है, अब scanf a की वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे इसको 10. ठीक है, एंटर मार दिया. अब वो मेरे से scanf b सेकंड वैल्यू मांग रहा है एज ए प्रोग्राम. इट इज आस्किंग फॉर मी कि मैं इसको एक और वैल्यू दूं. तो मैं 2 दे देता हूँ. तो आंसर्स क्या आएंगे, सम इज 12, सब्ट्रैक्शन इज 8, मल्टीप्लिकेशन इज 20, डिवीजन इज 5 एंड मॉडुलस इज 0. ठीक है, तो ये सारे आपके आउटपुट आ जाएंगे. अब देखो ये कितना अजीब लग रहा है. तो इसको ठीक करने का सिंपल सा वे है. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड ए न्यू लाइन एवरी टाइम आई एम गेटिंग द आउटपुट. ठीक है, यहाँ पे जब भी printf हम कर रहे हैं आई कैन राइट ए न्यू लाइन. इसको न्यू लाइन हम लिखते हैं ऐसे बैकस्लैश n करके. सो इफ आई एम राइटिंग दिस थिंग, लेट्स से बैकस्लैश n, इसका मतलब है बैकस्लैश n मीनिंग इज न्यू लाइन. ठीक है जी. तो अगर मैं बैकस्लैश n डाल देता हूँ मेरे हर आंसर के बाद, तो मुझे हर बार वो न्यू लाइन में लेके जाएगा और मेरा आउटपुट दे देगा मेरे को. सो इफ आई रन दिस कोड नाउ, दिस विल गिव मी द आउटपुट एज दिस. अगर मैं यहाँ पे पहले 10 दूंगा फिर 2 दूंगा, माई आउटपुट इज दिस नाउ. तो सम इज 12 एंड सब्ट्रैक्शन इज 8, मल्टीप्लिकेशन इज 20, ऐसे करके सारे आउटपुट आ गए हैं. So modulus or the remainder is this percent sign. Okay. So this is how I will do the mathematical operations. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी. जैसे कि भैया हमने ये इंटीजर जो है ये डिफाइन कर रखा है. अगर हम जो वैल्यू scanf में अगर हम 10.5 डाल दें या फिर 2.5 डाल दें तो क्या होगा? Error आएगा because I am expecting integer. I am not expecting float. और अगर हम फ्लोट में इंटीजर डालें तो सिर्फ 10 लिख दें तो फिर एरर आएगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगा फ्लोट. मैंने सपोज लिखा यहाँ पे float ab और यहाँ पे मैंने लिखा %f. तो आप कह रहे हो यहाँ पे मैं इंटीजर डाल दूं? यहाँ पे नहीं, जब हम स्कैन करेंगे वो इनपुट मांगेगा नीचे प्रोग्राम में. हाँ, तो फ्लोट की ये कंडीशन होती है क्या कि अगर हम जो इनपुट दे रहा है यूजर वो 10.2 करके दे या फिर 10.0 करके दे, नहीं आप कि 10 सिर्फ 10 दे तो चलेगा? आप 10 भी दोगे तो भी चलेगा. अब कर लेते हैं इसको, आपने बोल दिया तो इसको करते हैं. लेट्स डू इट फॉर फ्लोट, कि मैं दोनों नंबर फ्लोट लेता हूँ और सबको यहाँ f कर देता हूँ %f. ठीक है, तो यहाँ पे %f आ जाएगा. दिस विल बी %f, this will again be %f and this one will be again %f. तो अब मैं %f करके करता हूँ and I will give the inputs same 10 and 2. फिर देखते हैं क्या आता है. एक सेकेंड, क्या पंगा है. a%b. Okay, so it is saying that you cannot do the remainder like this. a mod b यहाँ पे नहीं कर सकते for float. But why? ये इंटीजर वैल्यू देता है ना आउटपुट. नहीं, इंटीजर तो देता है सर वो फ्लोट सपोर्ट ही नहीं करता रिमाइंडर यस जो सर, होता है तो फिर ऑपरेटर. उसमें डी डालना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉइंट्स में रिमाइंडर कभी आता नहीं है. ठीक है, तो लेट्स स्किप दिस वन फॉर नाउ. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओनली फोकस ऑन दीज 4. इसको रन करते हैं. सो दिस विल बी
अगर मैं 10 and 2 देता हूँ, आप कह रहे हो कि पॉइंट ना भी दूं तो चलेगा, देख लो वो अपने आप वो पॉइंट लगा रहा है उसके पीछे, ठीक है। बैकएंड पे इट इज हैंडलिंग इटसेल्फ के वो जो पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस हैं वो अपने आप उसको 0 कर रहा है। अगर मैं 10 भी दे रहा हूँ, इट इज कंसीडरिंग इट एज 10.00006 टाइम्स, सर अगर ठीक है। अगर हम जैसे उसमें पहले हम और अगर हम फ्लोट वैल्यू इनपुट करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंटीजर ले ले, सिर्फ इंटीजर पार्ट। आप ना अपने एंड पे भी ये करके देखो, ठीक है। अब अगर सब सब कुछ यही मैं करता रहूंगा फिर हम कुछ और डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, अपना टाइम भी खत्म होने वाला है। सो नाउ आई वांट टू ब्रिंग यू टू वन मोर स्मॉल थिंग which was the actual assignment one for you। तो मैं उस assignment one को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ so that you people can also have a better confidence when you will do it on your end। So I am bringing that assignment link here, give me 1 second। शेयर कर दो ना चैट में। हाँ चैट में भी लिख दूंगा मैं, just give me 1 second, I am finding that link। मैंने एक जगह पे इसको सेव करा हुआ था। Okay, so I have found it, putting that into the chat box, and also I'm opening that same link। So this link will be opened by you। I think it can be opened by any email ID। थापर का स्पेशली नहीं चाहिए, बट देन अगर नहीं खुलेगा तो आप थापर का आईडी लगाओगे तो खुल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द असाइनमेंट वन। This is what is expected out of you after this lab। So I will discuss one or two programs now। Let's say I will start with area of a circle, then I will come to nth root of a number। तो मैं ये दोनों करवाता हूँ। If time allows, I will also complete the compound interest। बाकी आप अपने आप करना। And in fact, we have already done this one, and we have also done hello world। We have also done input of integer and displaying। हाँ जी बताओ, anyone speaking? सर इसमें हमें सबमिशंस करने हैं। बना के रख लो, सबमिशन चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। whenever it will be required I will let you people know। so what you can do is out of you whosoever is the GR, he can put me an email, अपना पूरा डिटेल मेरे को भेज देना so that I can save your number and I will contact you later on if this kind of thing is required। ठीक है, आप मेरे को एक email ड्रॉप कर देना whosoever is a GR of your group। so right now we have already done this, we have done this one। so let me focus on area of a circle now। if I want to write a program for area of a circle तो कैसे करेंगे? so first of all I also want to mention one small thing। can anyone tell me the difference between single line comment and multiple line comment and how to do that? जल्दी से बताओगे? सर सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 स्लैशेस यूज करते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए स्लैश और एस्ट्रिक साइन बिगिन के लिए और एस्ट्रिक साइन और स्लैश एंडिंग के लिए। देखो ठीक बोला इसने। सिंगल लाइन कमेंट होता है कि हमने ऐसे डबल स्लैश डालेंगे तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो कमेंट्री है। तो इफ आई राइट इट हियर दिस इज ए मेन फंक्शन, तो मेरा जो कंपाइलर है वो इस पूरी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। इनफैक्ट वो इस पॉइंट के बाद वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा अंदर, यहाँ अपने फंक्शन के अंदर, एंड इट विल इग्नोर दिस थिंग। जो मर्जी यहाँ पे मैं कमेंट्री लिख लूँ, कंपाइलर पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेसिंग टाइम बिकॉज कंपाइलर उसको इग्नोर कर रहा है। जब उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहा तो टाइम क्या लगाएगा, ठीक है। एंड नाउ इफ आई वांट टू राइट ए मल्टीपल लाइन कमेंट तो यहाँ पे मैं स्लैश के बाद स्टार डाल दूंगा। तो जब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा, मैंने इसको खोल तो दिया स्लैश एंड स्टार के साथ, जब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा वो एंड तक मेरे पूरे प्रोग्राम को कमेंट कर देगा। आप देखो उसका पूरा पूरा प्रोग्राम मेरा ब्राउन हो गया है, ठीक है। now if I want to write a multiple line comment I can always do one thing। let's say now I want to make a program of area of a circle। तो area of circle का प्रोग्राम बना लेते हैं फटाफट, और उसमें मैं रेडियस वाला चीज I will take from the user input, ठीक है। and pi का वैल्यू we all know it is 3.142857, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देता है, और मे बी आई कैन राइट इट एज 22/7, ठीक है। एंड नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, तो मैं इसको कमेंट्स को खत्म कर देता हूँ। दैट्स ऑल फॉर माय कमेंट्स। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है एंड रेडियस मेरा यूजर इनपुट होगा, पाई का वैल्यू 22/7 होगा। लेट्स डू इट। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज
first of all I want to get the user input of radius. So सबसे पहले I will get a float radius because radius can be in that points form also. So float r equal to, in fact nothing equal to, but now I have to do scanf, and I also want to tell the user that please enter the radius. Printf, please enter the radius of the circle. ठीक है, मतलब ये as it is आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. एंड नाउ आई कैन डू द इनपुट %f comma %r. So this will actually take my input as a user input for the radius. तो वो radius r value बन गई मेरी. And now I also want to give the value of pi, so it will be float pi equal to 22/7. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 22/7 मेरा पाई में आ जाएगा, सॉल्व होके पाई को वैल्यू मिल जाएगी. नाउ व्हाट विल बी माय एरिया? इट विल बी फ्लोट area equal to pi r square. So simple like this. ठीक है, pi r square आ गया, and you can also print it. So printf the area of the circle is %d f आएगा because area is float. So this is how the program will be made for area of the circle. ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल हमने बनाना था, उसमें हमने रेडियस यूजर इनपुट लिया और पाई को 22/7 दिया. एंड उसके बाद वी स्टार्टेड द प्रोग्राम जिसमें हमने फ्लोट आर लिया एज ए रेडियस. मैंने बोला कि प्लीज एंटर द वैल्यू, स्कैन एफ करके हमने यूजर इनपुट लिया. देन फ्लोट पाई इक्वल टू 22/7 बिकॉज दिस वाज प्री डिफाइंड. ठीक है, ये हमें पहले से दिया हुआ था ऊपर कंडीशंस में. एंड देन फ्लोट एरिया इक्वल टू pi r square and area can be printed like this. So whatever the input will be, let's say मैं इसको 10 दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 314 point something. ठीक है, अगर मैं 10 दिया pi r square, ये 300 क्यों हो रहा है? 22/7. सर वहाँ पे 22.0 0. लिख दो, ऐसा कुछ हो जाएगा. हाँ इससे हो जाएगा. वो उसको इंटीजर लेके राउंड ऑफ कर गया था फिर से. अब ठीक आ रहा है 314.285. सो दिस इज द आउटपुट. ठीक है, अगर मैंने सिर्फ 22/7 लिखा तो वो क्या कर रहा था, वो 22 को एज ए इंटीजर और 7 को एज ए इंटीजर लेके इसको राउंड ऑफ करके 3 कर रहा था, 3 पॉइंट समथिंग को, तो इसलिए हमारा आंसर 300 आ रहा था. सो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल. ठीक है जी, इसके बाद इफ आई नाउ वांट टू मेक ए प्रोग्राम फॉर nth रूट ऑफ ए नंबर. nth रूट क्या होता है? कैन एनीवन टेल what is nth root of a number? So something raised to power 1 by n. Yes, nth root of a number, let's say m, formula is m raised to the power 1 by n. ठीक है, अगर आपको बोला जाए m is equal to 100, n is equal to 2, output will be 100 raised to the power 1 by 2 which is equal to square root of 100 which is equal to 10. ठीक है, तो इसमें आंसर 10 आएगा. क्वेश्चन समझ में आ गया nth रूट का मतलब क्या होता है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कोड में. सो वी विल मेक द प्रोग्राम फॉर nth रूट ऑफ ए नंबर. What I can do is I will take the input of m and n from the user. ठीक है, मैंने m और n आपको बता दिया क्या है. ऑफ ए नंबर, नंबर मेरा m है. ठीक है, और nth रूट समझ आ जाएगा. ठीक है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ m and n. दो चीजें हम इनपुट लेंगे यूजर से, एंड दैट विल बी %f कॉमा %f. दो इकट्ठे भी ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इकट्ठे ले रहा हूँ यहाँ पे. %m %n, तो दोनों का इनपुट ले लिया. उसके बाद नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द आंसर. ठीक है, मेरा आंसर होगा फ्लोट आंसर इक्वल टू, वी हैव टू यूज वन फॉर्मूला कॉल्ड पावर फंक्शन. वो मेरा है इस लाइब्रेरी में #include math.h. तो मैथ्स का फंक्शन है पावर, तो मैंने सीधा math.h बुलाया, उसमें से पावर फंक्शन लिया और उसमें m, 1 by n दे दिया इनपुट, सो दैट आई गेट द पावर ऑफ
1 by n with m। तो अगर मैं nth रूट बोलूंगा तो पावर में m कोमा 1 by n देंगे। अगर सपोज मैंने इसका करना होता है nth पावर ऑफ ए नंबर, ठीक है, nth रूट की बजाय nth पावर होता तो 1 by की बजाय n हो जाता, तो nth पावर हो जाता कि भाई रेज टू पावर 2 है 3 है जितना भी है, तो वो चीज आ जाती। बट नाउ आई हैव टू यूज 1 by n and the answer will be like this. So you can write here nth, not nth, but percent f root of so kind of 2th root of 100 is this result. So I will give the values in sequence. nth root मतलब n पहले आएगा of this m is my answer। तो अब आउटपुट देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी, इसको रन करते हैं। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ m एंड n। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखनी है कि scanf के अंदर हमने क्या लिखा है। मैंने दो इनपुट्स को कॉमा से अलग करा उसको, ठीक है, अलग कर दिया दोनों को। तो मैं दो चीजें इकट्ठी दे सकता हूँ यहाँ पे 100,2। तो मेरा आउटपुट आया ये दैट 2th रूट ऑफ 100 इज 10 आ गया ये, ठीक है, 10 आ गया। अब पंगा ये है कि ये बहुत गंदा लग रहा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 0.1 0.1 0.1, ठीक है। तो सबको मैंने 0.1 कर दिया। नाउ इफ आई डू द सेम थिंग 100,2, द आउटपुट इज दिस 2th रूट ऑफ 100 इज 10। ठीक है, आसान है जी ये nth रूट वाला। आ गया सबको समझ? अगर किसी को डाउट है पूछ लो। सर हम पावर फंक्शन के बजाय सर्कमफ्लेक्स ऑपरेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो C++ में सपोर्ट करता है, सी में सपोर्ट करता है क्या? वो आपको करके देखना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता। और सर ठीक है इसमें डबल एस्ट्रिक साइन यूज कर सकते हैं पावर की जगह? डबल एस्ट्रिक तो यार पाइथन में होता है, तो यहाँ नहीं होगा। यस, ओके सर। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन nth रूट। Yes, sir. Okay, so let's do this code now. We have time till what? 3:30, right? Yes, sir. Okay, so we still have 35 minutes to go. Okay, now if I want to make a program for compound interest, उससे पहले चलो सिंपल इंटरेस्ट वाला बना लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है। Let's say that I want to make the code for simple interest. So I don't need this math function for now. What I will do is I have to get the values of P, R and T. Please enter the value of P, R and T. उसके बाद we will give the value of all these things। ठीक है, ampersand P, ampersand R, ampersand T। इतना याद रखो कि जो भी मैंने इनपुट करवाना है हर बार एम्परसेंड लगाना जरूरी है। इनपुट हो गया खत्म। इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो थोड़ा सा डेकोरेट माई कोड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनपुट, ठीक है, इनपुट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। तो अपने कोड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसी वाली कमेंट्री बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कैलकुलेटिंग simple interest. Now if I want to calculate the simple interest, what I have to do is float SI equal to PRT by 100. Very simple thing, P into R into T by 100, and the answer will be here. Now the output. Simple interest of P equal to %F, comma R equal to %F
and t equal to %f is %f। ठीक है, अब मैं इन सारी वैल्यूज को वैल्यू दे देता हूँ कि क्या क्या आना चाहिए। सो सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिख देते हैं। सो p r t si। so let's go for it, run 100। बिकॉज अब ये देखो मैंने यहाँ पे ना कॉमा डाल रखा है स्कैनफ के अंदर, तो मुझे इनपुट भी कॉमा डाल डाल के देना पड़ेगा। तो कॉमा rate is 10%, comma year is 3 years। So simple interest of p equal to 100, r equal to 10 and t equal to 3 is 30 rupees। ठीक है, आसान है, बहुत आसान था। Now it's on you now, make the code for compound interest। I will tell you the formula for that, give me 1 second, there is something in the chat। Okay, someone was asking star दो बार use कर सकते हैं। I have already answered that, it's for Python। So now if I want to make the program for compound interest का फॉर्मूला बताओगे anyone? Sir, P1 plus R by 100 raised to power n। That's the formula of amount। ठीक है जी, तो माइनस पी कर लेंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन माइनस जाएगा। पी पर हाँ चलो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का लिख देता हूँ, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेस्ट टू द पावर t। यही होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। माइनस पी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो लेट्स डू इट, खुद ही कर लेते हैं। सो इफ आई हैव दिस printf, prt values will be as it is। Calculating the compound interest now, so it will be equal to p into, okay so I need the math.h this time because rest party करना है, hash include math.h। कैसे करेंगे, p into पावर फंक्शन 1 प्लस r ऐसे ब्रैकेट में डालें या ऐसे, चलो ऐसे चले जाते हैं, 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर t। ठीक है जी, ये हो गया मेरा अमाउंट minus p, so this is the compound interest। so if I print this now for, हाँ ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा सर यहाँ। इसमें ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस होता है क्या? हाँ जी, सेम होता है क्या पाइथन जैसे? पाइथन जैसा तो नहीं, जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है ना वो बोर्ड मास वाला, वो वाला वो वाला ज्यादातर होता है, मतलब सेम है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो आगे जाके आएगा आपको डिटेल में कि प्लस और माइनस में पहले कौन सा होगा, वो चीज़ मतलब थोड़ा अलग है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में अब यहाँ पे बिकॉज विद इन द सेम ब्रैकेट आई एम डूइंग डिवीजन एंड प्लस, तो मुझे डिवीजन को तो प्रेफरेंस देनी थी, वो बाय डिफॉल्ट डिवीजन को दे देगा अपने आप। ठीक है, ओके सर। तो लेट्स रन दिस कोड नाउ। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई गिव द, अब ये क्या इशू आ रहा है, सेमीकोलन। सेमीकोलन ने डाला यहाँ पे। If I give the input of PRT as 100, 10, 2, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ। हाँ जी बताओ जी। 1.21। 21। अब ये 21 कैसे आया, उसके पीछे एक बेसिक सा लॉजिक है। आई विल एक्सप्लेन दैट लॉजिक ऑन दिस साइड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट को ना हम सिंपल इंटरेस्ट ही कहते हैं, बस हर साल हम प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल अपडेट हो जाता है। सपोज मैं ऐसे ही निकालता विद प्रिंसिपल एज 100, 10% एंड 1 ईयर, तो मेरा कितने रुपए आता, 10 रुपीज़। ठीक है, बट नाउ इफ आई ऐड दिस इंटरेस्ट इनटू द प्रिंसिपल अमाउंट,
तो मेरा सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 110 बन गया, बाकी सेम रहा। तो सेकेंड ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट आया दैट केम आउट टू बी 11। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का सम होगा 21। So this is the compound interest, ठीक है जी। This is the logic behind your compound interest formula कि आप 2 साल का compound interest निकालते हुए 2 साल का ऐसे वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट जस्ट टेक केयर कि आप अपने प्रिंसिपल को अपडेट कर रहे हो फॉर द सेकेंड ईयर और फॉर एवरी कमिंग न्यू ईयर, ठीक है। पुराने साल का इंटरेस्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 3 साल का निकाल रहे होते तो जैसे 121 आ गया था, तो 121 2 साल का हो जाता है, 10 + 11 करके 121 हो जाता, तो यहाँ पे 121 आता। तो थर्ड ईयर में 121 मेरा बन जाता ऐसे, एंड इट विल बी 12.1 रुपीज़। तो कंपाउंडिंग में हर साल मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज माई प्रिंसिपल इज गेटिंग अपडेटेड, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई माय आंसर केम आउट टू बी 21। और इस चीज़ का बस ध्यान रख लेना क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा है, पॉइंट के बाद 6 zeros, तो आप इसको मे बी यू कैन राइट इट एज 0.1f 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 एवरी टाइम, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आप अपने कोड को रख सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन डू द कमेंट्री लाइक दिस कि जैसे 2 लाइन है तो ये 2 लाइन में क्या हो रहा है, तो इसका हम ऐसे करके सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं, इट इज इनपुट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। सो आई वांट यू पीपल टू मेक दिस प्रोग्राम ऑन योर एंड नाउ, 11th प्रोग्राम अपने आप बनाओ अभी, एंड लेट मी नो इफ इट वर्क्स, ठीक है। शेयर इट विद मी, यू कैन शेयर द स्क्रीन। सो आई गिव यू 5 minutes, क्विकली मेक दिस प्रोग्राम नंबर 11 everyone। और इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क। हमने काफ़ी प्रोग्राम बनाए हैं आज, बहुत कुछ डिस्कस करा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, nth रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब देख लिया आज। तो उसमें से किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क पैरेलली दोज हु वर आंसरिंग मोर, एंड आई गॉट द फीलिंग दैट लॉट्स ऑफ यू आर ऑलरेडी नोइंग प्रोग्रामिंग। किसी ने चाहे पाइथन करा है चाहे कुछ करा है, बट यू नो द syntax of C programming also based on today's lab। Quickly make this program 11th wala and let me know if you make it। I will make you share your screen and you can show your answer to everyone। You can share your screen now, Siddharth। I have made you the co-host and you can show that how you have done this program। Yes, sir. One second. Yes, quickly share the screen। Sure. Okay, so explain this code now। ओके तो सर जैसे हमने पहले बेसिक उससे मांगा, यूज़र से मांगा, एंड देन फिर हमने वैसे ही बेसिक उस बंदे ने स्कैन से, नहीं सॉरी हमें प्रिंट आया, हाँ ठीक है। तो फिर उसने दिया, फिर हमने उसको डीए का 10% दिया बेसिक से, और फिर उसका टीए हमने निकाला, ग्रॉस सैलरी हमने इसे दिखाई, फिर प्रिंट है ग्रॉस सैलरी, चल रहा है ग्रॉस आपका कोड? रन मैं इसे दिखाया, एक second। सर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। हाँ वन सेकंड। वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं किया और एक सेमीकोलन भी मिसिंग है इसमें, ग्रॉस सैलरी वाले में ही। इंट टीए भी कर लो, या फिर फ्लोट ही कर लो यार, वो 12% निकालना है तो फ्लोट में वैल्यू ज़्यादा सही आएगी। बेसिक को भी करना पड़ेगा ऊपर डिक्लेयर। ऐसा ठीक है। बेसिक को भी तो कर लो ऊपर डिक्लेयर, आपने बेसिक को डिक्लेयर नहीं करा। फ्लोट बेसिक आएगा ना पहले। हाँ जी, शो द रिजल्ट नाउ। सेमीकोलन डालो, इसके आगे डालो, सेमीकोलन ही डाला आपने 5th और 6th लाइन में। हाँ ग्रॉस सैलरी आ गया 6100, ठीक है।
Okay, so you can stop your sharing. I will give someone else the chance now. सर 10 इंटू जैसे उन्होंने करा 10 इंटू बेसिक बाय 100 सीधा 10% ऑफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं. Now who want to share the screen? जल्दी से बताओ. Pulkit, will you? Yes, sir. Okay, I'm giving you the permission now. 1 second. Pulkit को देते हैं जी make co-host. Okay, so you can share the screen now. I have made you the co-host. सर आपसे क्वेश्चन पूछना है. हाँ जी पूछो. सर ऐसे सर क्वेश्चन. एक मिनट सर, आपने शायद दूसरे अकाउंट को परमिशन दे दिया. मैंने हैंड रेस करके रखा हुआ, उस अकाउंट को देनी है. अच्छा एक सेकेंड. ओके, पहले मैं इसका कर दूं, दोबारा से रेसेंड करो. हाँ ठीक है यार, मेरे को ना एक सेकंड ध्यान से करना पड़ेगा. ये रहा. ठीक है, ये लो, दे दी परमिशन. अब करो. यस तो जैसे वो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें उनको हम कंडेंस करके लिख सकते हैं. जरूरी है मतलब हमें पूरा लिखना है? कर लो कंडेंस करो. बस वहां कमेंट लिख दो साथ में कि कंडेंस कैसे किया है. ओके सर विजिबल है क्या? यस. हाँ फॉन्ट साइज बढ़ा लो सो दैट सबको दिखेगा. कोई ना, ऐसे कर लो. ऐसे कर लो. हाँ करो. सर पहले यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया. फिर स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे प्रिंटफ की स्टेटमेंट दी. और उससे उसके बाद स्कैन किया और एक वेरिएबल बनाया ग्रॉस सैलरी. और सीधा सिंपल मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख दिया. इसका फायदा ये होगा कि वेरिएबल कम बनेंगे और मेमोरी कम यूज होगी और ऑपरेशंस उतने ही होंगे. और इसको और रन कर दो इसको. और इम्प्रूव करोगे तो वो अपने पे कर लेना आप इसको. बट ठीक है. क्या पीछे फॉर्मूला क्या था? 10% टीए था और 12% डीए था. हाँ जी. 12% ऑफ ये जो आपने 0.12 करा है, ये 0.1 इंटू बेसिक आएगा कि कैसे आएगा? फॉर्मूला दिखाना पीछे क्वेश्चन में. सर मैंने सिर्फ जूम किया. फॉर्मूला ये था कि बेसिक फिर 10% ऑफ बेसिक फिर 12% ऑफ डीए. अच्छा 10. ओके फिर तो ठीक है. तो यहाँ पे ना कमेंट लिख दिया करो बीच में. ठीक है, तो फ्लोट जैसे स्कैनएफ है, स्कैनएफ के बाद एक कमेंट लिख के वो लिख देना पूरी कहानी के आपने कैसे इसको कैलकुलेट किया है. तो इसके बारे में समझा दो कमेंट डाल के, मल्टीपल लाइन कमेंट डाल दो चाहे. नहीं सर आप सही बोल रहे हैं, वो दोनों ही 10% ऑफ बेसिक एंड 12% ऑफ बेसिक है. अब जैसे इसने 12% ऑफ डीए करा है. एक सेकंड. अगर 12% ऑफ बेसिक है तो फिर सिंपल सा ये चेंज होगा और कुछ हाँ नहीं. बस फिर तो स्टार आ जाएगा और कुछ नहीं है. खत्म. बस ये चेंज है. हाँ बाकी सब ठीक है. चलो ठीक है. डालो इसमें. अरे इधर आ गया. ठीक कर ले उसको. ठीक है, हो जाएगा. ठीक है, तुम अपनी शेयरिंग स्टॉप कर दो. ठीक है फाइन. ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डील कर लिए हैं यहाँ पे. सो आई होप एवरीवन कैन हैंडल दीज क्वेश्चंस नाउ. या डीए इज 10% ऑफ बेसिक, टीए इज 12% ऑफ बेसिक. इसमें ठीक है 0.12 इंटू बेसिक 0.1 इंटू बेसिक करके हो जाएगा काम. आसान था. सो आई होप असाइनमेंट 1 कैन बी हैंडल्ड बाय यू इजीली नाउ. That's all which was required to be covered in this lab. So yeah.